So take an example, children, that there is a joint stock company named as RD Limited. They wanted money a couple of years ago. So they got in touch of what is called as many investors. And ये सारे के सारे investors so called face value rupee 100 and issue value could be more than 100, could be equal to 100, could be less than 100 के debentures इन्हें issue करते हैं and they contribute money. Logic समझ में आ गया? The date is, let us say, 1st of July 2018. And company promises them that they will get their money back after 10 years on 31st March 2000, roughly 27. And company may give them amount equal to face value, may give them amount more than face value, may give them the amount equal to or less than face value. This procedure of returning the money, children, is known as redemption, that is repayment of debentures. So when the company takes money from you, you are an investor. It is called as issue of debentures. And when you get your money back, it is called as redemption of debentures. Fundamental logic is clear. So people might say, sir, हमने तो ये पढ़ा हुआ है. What is the entry titled as for issue of debentures and what is the entry for repayment of debentures? 9 cases that were taught to you at the time of debenture issue chapter, children. So debenture जब आपने issue किया, आप एक entry receipt की पास करते थे और एक entry transfer की करते थे. Remembering bank account debit to debenture application and allotment, followed by debenture application allotment account debit. Loss वगैरह है तो debit करते थे. 2 debentures और प्रीमियम पे इशू किया तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अगर कल को रिडीम करना है प्रीमियम पे तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ऐसा कुछ करते थे हम लोग. एंड देन चिल्ड्रन, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आप अगेन 2 एंट्रीज करते थे. वन वाज फॉर ड्यू एंड अदर वाज फॉर पेमेंट. ड्यू की एंट्री होती थी डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम डेबिट होता था, डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है तो प्रॉफिट क्रेडिट होता था. एंड पेमेंट की एंट्री होती थी डिबेंचर होल्डर टू बैंक. इतना सबको क्लियर होगा. बट नाउ कंपनीज एक्ट, चिल्ड्रन, हैज मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इशू एंड रिडेम्पशन. एंड उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए वी नीड टू पास सर्टेन मोर एंट्रीज इन बिटवीन द पीरियड ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन. आपको यहां से लेके यहां तक कुछ नंबर ऑफ एंट्रीज और पास करनी पड़ेंगी. सर वो क्यों पास करनी पड़ेंगी? ये तो हो गया सफिशिएंट. रीजन बीइंग, कंपनी इज गोइंग टू मेक द पेमेंट आफ्टर 10 years. इज इट नेसेसरी कि 10 years के बाद कंपनी के पास पैसे हो? इज इट नेसेसरी कंपनी bears a good financial position after 10 years also? Practically not. Practically not. So सेबी ने काफी रूल्स इंपोज किए हुए हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली भी और खुद भी. सो उन रूल्स को फॉलो करते हुए वी नीड टू डू सम एंट्रीज. लॉजिक समझ आ गया? दैट्स व्हाई दिस डिफरेंट चैप्टर इज देयर इन द सिलेबस. खोपड़े में बात गई तो आई विल बी गिविंग यू 2 minutes टाइम. प्लीज अपडेट दिस, चिल्ड्रन, प्लीज अपडेट दिस. सो मूविंग अहेड, चिल्ड्रन. So meaning of redemption is very clear and simple. It simply refers to the cancellation, extinguishing or discharging of liability on account of debentures in accordance with the terms of issue. So the word redemption simply means, children, what? Repayment of money to the debenture holders. अब दो चीजें बच्चे को बड़ा कंफ्यूज करती हैं यहाँ पे, चिल्ड्रन. What is called as methods of redemption and other is titled as sources of redemption. Methods of redemption means कि भाई आज सो कॉल्ड कंपनी पैसा कहां से लाकर आपको वापस देगी, ये सोर्स है. बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसको मेथड में. एंड द टर्म सोर्स मींस हम कैसे आपको पैसा वापस करेंगे. अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन. कैसे नहीं, कहां से.
So from where we are going to pay back your money, it is called as source. भाई पानी कहां से आता है? आप बोलेंगे आरओ वाटर प्यूरिफायर में से। ओके करेक्ट। गंगा जी कहां पे बहती हैं? कुछ लोग कहेंगे संगम। ज्यादा पढ़े लिखे बोलेंगे हरिद्वार ऋषिकेश। थोड़े और अपग्रेडेड होंगे गौमुख ग्लेशियर। बट सच्चाई ये है ही नहीं बच्चों, गंगा जी तो शिव जी की जटाओं से निकली है। ये मैथोलॉजिकल आंसर है, समझ में आ गया? रियल आंसर तो भाई हमको आपको यही पता है कि भाई गौमुख ग्लेशियर से उनकी उत्पत्ति हुई है। सो सोर्स मीन्स फ्रॉम वेयर डिड इट ओरिजिनेट। सो व्हेन यू सी द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम, दिमाग में पहला ही क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आता है वो ये नहीं होता कि भाई क्या लिखना है एंड ऑल दैट। ये क्वेश्चन कहां से चला आया? अरे कहां से चला है? कोई इंपोर्ट करके थोड़ा लाया टीचर। ये उसी किताब से आया जिससे आपने पढ़ाई नहीं की है, बेसिकली वहीं से आया ये क्वेश्चन। तो दिस इज द सोर्स। ये क्वेश्चन कैसे आ गया? आपने टीचर से पूछा, टीचर ने कहा आई गिव द सो कॉल्ड टेक्स्ट टू द पर्सन हु टाइप्ड इट। कंप्यूटर पे टाइप किया, पेपर पे छप के वहां से आ गया। समझ में आई बात? तो मेथड मीनिंग टू से हाउ यू आर गोइंग टू पे बैक, एंड सोर्स मीनिंग टू से फ्रॉम वेयर मनी वॉज मेड अवेलेबल। लॉजिक समझ में आ गया? तो थ्योरी के आंसर में आपसे पूछा जाएगा नेम एनी टू मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। सो लेफ्ट कॉलम में जो ABCD मेंशन्ड है, यू आर सपोज टू राइट दैट। बट व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड नेम टू सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन, तो राइट साइड में बच्चों जो आपको ABCD नजर आ रहा है, यू आर गोइंग टू पुट दैट। लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? पक्का? कंफर्म? चलिए। सो द कंपनी में मेक द पेमेंट ऑफ ऑल द डिबेंचर होल्डर चिल्ड्रन ऑल मनी आफ्टर 5 year 10 years। लॉजिक समझ में आ गया? 5 साल 10 साल के बाद हम पूरा पैसा आपको वापस कर देंगे। इट इज नोन एज पेमेंट इन लंप सम। तो यहाँ पे कंटेंट बड़ा ही सिंपल होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज बड़ी कम होती हैं। सेम केस हम 10 years के बाद नहीं, कुछ मनी आफ्टर 3 years देंगे, कुछ आफ्टर 7th year, कुछ आफ्टर 9th year और बाकी बचा आफ्टर 10th year। बीच बीच में हम पैसे देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज पेमेंट इन लंप सम। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब ये मत समझिएगा पर्ची निकलेगी, राम प्रसाद का नाम आया तो उसको पैसा मिलेगा, घनश्याम प्रसाद को नहीं मिलेगा। नो परचेज सिस्टम चिल्ड्रन। हम अगर 100 करोड़ रुपए डिबेंचर होल्डर से ले चुके हैं, 20 करोड़ सेकेंड ईयर के बाद वापस करेंगे, 30 करोड़ रुपए और 5th ईयर के बाद, और बाकी का 50 करोड़ 8th ईयर के बाद। तो आपने अगर 1 लाख रुपए डिबेंचर्स में लगाया है तो 20,000 रुपीज 2 साल बाद वापस होगा, बाकी का 30,000 3 साल के बाद, और उसके बाद का 50,000 से 7-8 साल के बाद। इट इज कॉल्ड एज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। और ये क्या है सर, सुबह 10 बजे जब बाजार खुल जाएगा तब जाएंगे? नो। परचेज इन ओपन मार्केट का मतलब होता है जैसे मैं और आप स्टॉक मार्केट में जाकर शेयर्स डिबेंचर्स खरीदते हैं, कंपनी भी कुछ ब्रोकर्स को कांटेक्ट करती है और उन ब्रोकर्स को बोलती है कि स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है हमारे डिबेंचर्स का, जाओ उस प्राइस पे खरीद के ले आओ। कभी डिबेंचर 100 रुपए वाला हो सकता है 106 में मिलेगा, कभी 108 में मिलेगा, मार्केट गिरी हुई है तो 94 में मिलेगा। यहां से आपको ट्रिक मिल गई होगी कंपनी क्यों इस बात को अप्लाई करती है। कंपनी विल टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी, और कंपनी ने थोड़ी सी अकल लगाई। हमने लोगों को प्रॉमिस किया था 1 अप्रैल 18 को 100 रुपए का डिबेंचर जब 105 में बेचा था, दैट आफ्टर 10 years हम आपका पैसा वापस करेंगे एट 112 रुपी। 112 रुपी फेस वैल्यू डिबेंचर की 100 रुपी है। तो 105 में अगर बेचा तो 5 आपसे कमा लिए, और 112 आपको वापस कर रहे हैं तो 12 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। द ईयर 2027 वुड बी द ईयर जब कंपनी पैसा वापस देगी। बट कंपनी को बच्चों नजर आया 2021 में थोड़ा सा मार्केट में रिसेशन है, क्यों और 6 साल का इंतजार करें? हमें पब्लिक के पैसे की जरूरत नहीं है। वी हैव हैंडसम प्रॉफिट्स अर्न्ड विद इन लास्ट 5-10 years। लेट्स गिव द मनी बैक। सेबी से अप्रूवल लिया, स्टॉक मार्केट में प्राइस घूम रहा है 94 से 97 के बीच में, और सोचा इसी प्राइस पे लोगों का पैसा वापस कर दे। सेबी कहेगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिबेंचर होल्डर्स शुड अग्री। डिबेंचर होल्डर्स के मन में एक डर तो है ही है, नो डाउट इट इज अ हाईली सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, एसेट वगैरह सब गिरवी रखी है। 0.1% मान लीजिए कंपनी डिफॉल्ट कर जाए 2027 में, एसेट बेचने के बाद भी पैसे नहीं आए चिल्ड्रन, विल यू बी गेटिंग योर मनी बैक? एब्सोल्युटली नॉट। तो डिबेंचर होल्डर क्या सोच रहा है, चलो मौका अच्छा है, कंपनी आज पैसे वापस कर रही है, ले लेते हैं,
और इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके वहां से कमा लेंगे। तो कंपनी के लिए एडवांटेज क्या है कि भाई 12 रुपए जो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। एंड इवन अगर 97 में भी हमने वापस खरीद लिया तो 12 वो बचेगा और 3 ये 15 रुपए का फायदा है, प्लस आने वाले 5-6 साल में इंटरेस्ट देने का झंझट नहीं रहेगा। व्हाट द डिबेंचर होल्डर इज थिंकिंग, इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स आफ्टर 4-5-6 इयर्स, हो सकता है मेरे को जो आज मिल रहा है वो भी ना मिले। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो सेबी का अप्रूवल, डिबेंचर होल्डर्स अग्री करते हैं, हम लोगों का पैसा वापस कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? दिस इज कॉल्ड एज परचेज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट बेसिकली। आप किसी से भी सो कॉल्ड किसी टाइम पे भी अपने डिबेंचर्स वापस ले सकते हैं। किसी से मतलब दोज हु हैव योर डिबेंचर्स। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? एंड अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे, व्हाट अपॉर्चुनिटी सर? टिल नाउ यू पीपल वर गेटिंग फिक्स्ड इनकम इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, बट अब हम आपका स्टेटस अपग्रेड कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको मौका मिलेगा डिविडेंड कमाने का। क्या आप शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं? ये बात कंपनी उनसे कुछ दिन बाद नहीं पूछेगी, एट द टाइम ऑफ इशू ओनली। इन द प्रोस्पेक्टस जो इशू किया गया उसमें लिखा होगा कि आफ्टर 10 इयर्स हम आपको कैश नहीं देंगे, we'll take the old debentures back and in return we'll give you the shares. Debenture holders may feel happy because we are getting rate of interest on debentures at 8% in the market. ये कंपनी भी 8% दे रही है और इशू करते टाइम इन्होंने बता दिया that after 10 years we'll convert you in shares. और कंपनी को पता है भाई शेयर्स में तो मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं कंपनी के लिए, डिविडेंड चाहे तो दे चाहे तो ना दे, बट गुड कंपनीज डेफिनेटली गिव। प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, हो सकता है 25% डिविडेंड दे दिया, थोड़ा कम हुआ हो सकता है 15%, जिस ईयर में और कम होगा हो सकता है डिविडेंड ना दे। डिबेंचर होल्डर भी यही सोच रहा है, कंपनी ने अगर 25% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%, लगभग 3 साल का पैसा तो एक बार में मिल गया ना, तो कल को नहीं भी मिलेगा तो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। डिबेंचर मार्केट में आपका खरीदने वाले लोग कम होते हैं, बट शेयर्स खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्टिंग debentures into shares. Logic समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Understood all the 4 methods how we pay back basically? It's just like that class is to be conducted, sir. How it could be taken? It could be on Zoom platform, it could be on WebEx, it could be on Google Meet. This is called as method to teach. Called as? समझ में आ गया? भाई कहां से ये एप्लीकेशन मिला सर? iOS स्टोर से भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर से मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द सोर्स बेसिकली। समझ में आ गया? सोर्सेस, शेयर्स इशू करिए एंड व्हाटसोएवर मनी यू गेट पे बैक टू द डिबेंचर होल्डर्स। इसे बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन? ITUS। सर ये ITUS क्या होता है? इसकी टोपी उसके सर, किसी का पैसा लेकर आपने किसी और को दे दिया, सेबी इस चीज को मनी लॉन्ड्रिंग बोलता है, तो ये अलाउड नहीं है। द मोस्ट कॉमन फैशन टू स्टडी रिडेम्पशन एंड द कंपनीज अडॉप्टेड इज नोन एज आउट ऑफ प्रॉफिट। जो आपका प्रॉफिट का पैसा है आप उसमें से डिबेंचर होल्डर्स को पे बैक कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन, आपके पास पैसे तो हैं बट इट इज इन्वेस्टेड इन द सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, इट इज इन्वेस्टेड ऑन वर्किंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक ह्यूज है हमारे पास। कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, प्रॉब्लम लिक्विडिटी की है कि कैश नहीं है। Here we can take fresh approval from SEBI कि आप हमें शेयर इशू करने की परमिशन दीजिए। Whatsoever money we'll get, we'll pay back the money to the debenture holders, और उसके कुछ साल बाद हम शेयर होल्डर्स को भी पैसा वापस कर देंगे। This is known as out of fresh issue of shares. SEBI इसको अलाउ तो करता है बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। And at last children, converting shares into debentures. People might say, सर ये दोनों जगह क्यों आ गया? ये एक तरीका भी है और so called आपको पैसे नहीं देने हैं डिबेंचर्स के लिए, क्या देने हैं? शेयर्स देने हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो इयर्स अगो चिल्ड्रन एक वाटर पंप आया था। वाटर पंप किस काम में आता है आपको पता है? टू चैनलाइज द फ्लो ऑफ वाटर, मेन सप्लाई से वाटर टैंक तक एंड XYZ। और कंपनी का जो नाम था वाटर पंप बेचने वाली, दैट वाज टुल्लू। 2-4-5 साल के बाद ये वाटर पंप तो लोग भूल ही गए,
They used to go to the shop and say half horsepower का टुल्लू दे दो, 2 horsepower का टुल्लू दे दो. The word टुल्लू is basically the name of the company, but they used to call it represented as a water pump. जैसे वनस्पति ऑयल चिल्ड्रन, इंडिया में सबसे पहली कंपनी जो बड़ी फेमस हुई इसको लेके, दैट वाज डालडा. तो अब आपकी मम्मी आपसे ये नहीं बोलती 2 किलो वनस्पति ऑयल ले आओ, शी सेज 3 किलो डालडा ले आना. आप शॉपकीपर के पास जाते कहते 2 किलो डालडा दे दो, वो बोलता है डालडा नहीं है, कच्ची घानी है, या वो कौन सा है, सनराइज या फॉर्च्यून रिफाइंड, वो दे दो. आप हाँ वही दे दो. सो डालडा इज एक्चुअली द नेम ऑफ द कंपनी, बट इतना फेमस हो गया प्रोडक्ट इस नाम से कि प्रोडक्ट का नाम लोग भूल गए. वनस्पति घी की जगह नाम आ गया डालडा. तो डालडा इज द नेम ऑफ द कंपनी, बट वो डालडा को किससे रेफर कर रहे हैं, तो वनस्पति घी से. समझ में आया कि नहीं? पक्का. अब मान लीजिए रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनी जो सबसे फेमस है, दैट इज फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल. गॉट इट क्लियर? या जो मस्टर्ड ऑयल आता है तो कच्ची घानी उसको बोलते हैं. तो कच्ची घानी फसल का नाम होता है बेसिकली जिससे वो बनता है, एक्सट्रैक्ट करके मस्टर्ड सीड्स बेसिकली. तो अब कच्ची घानी के नाम से हर कंपनी मस्टर्ड ऑयल बनाती है. तो मस्टर्ड ऑयल एक प्रोडक्ट है, बट उसका ब्रांड नेम कच्ची घानी किसी कंपनी ने स्टार्ट किया. अब ये मान लीजिए किसी XYZ कंपनी का नाम था जिन्होंने इस प्रोडक्ट को इस नाम से बेचना चालू किया. तो अब लोग मस्टर्ड ऑयल तो भूल ही गए. अब मार्केट जाके ये नहीं बोलते सरसों का तेल दे दो, मस्टर्ड ऑयल दे दो. मस्टर्ड ऑयल बोलेंगे, शॉपकीपर कहेगा नहीं है, पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं मिला, क्योंकि शॉपकीपर को पता ही नहीं है मस्टर्ड ऑयल क्या होता है. वो सरसों के तेल के नाम से जानता है या कच्ची घानी के तेल से नाम से जानता है. क्यों सर? शॉपकीपर इतना पढ़ा लिखा है, हार्वर्ड से पढ़ के आया है, और उसको लगा कि नौकरी करने में तो कभी भी नौकरी जा सकती है, तो जनरल मर्चेंट की दुकान खोल लेते हैं. समझ में आया कि नहीं? पक्का. आप किसी भी इंसान को देखें खूब गटर गटर खा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? छोले भटूरे की तरह खा रहा है. कुछ भी खा रहा हो. क्यों? छोला भटूरा इज द वर्ड विच इज रिप्रेजेंटेड कि भाई ये सबसे टेस्टी फूड होता है. लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो चिल्ड्रन वैसे ही यहाँ पे भी है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, ये मेथड भी है एज वेल एज सोर्स भी है. तो टुल्लू क्या है? एक्चुअली तो कंपनी का ब्रांड नेम, बट लोग किस नाम से पहचानने लग गए. समझ में आया? सो मेथड्स और रिडेम्पशन में 2 थिंग्स हैपन टू बी कॉमन. सबको इतनी बात समझ में आई? चिल्ड्रन सबको इतनी बात समझ में आ गई? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल. तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है सोर्सेज और मेथड्स. सीधे आते हैं सो कॉल्ड चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज सेबी गाइडलाइन. ये जो गाइडलाइन है ना चिल्ड्रन, ये बड़ी अजीब टाइप की है, और सेबी को पता नहीं क्या मजा मिलता है, फैशन बना लिखा है इसको, हर 2-3 साल में इसको चेंज करता रहता है सेबी. तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ. जस्ट पुट द हेडिंग सेबी गाइडलाइन इन योर कॉपीज. आफ्टर पुटिंग द हेडिंग चिल्ड्रन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ओके, मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा, तो आप बहुत ज्यादा फालतू लिखिएगा मत, क्योंकि सोर्सेज और रिडेम्पशन ही मेन क्वेश्चन थ्योरी में से बनता है, बाकी तो इट इज ऑल प्रैक्टिकल. So put the heading in your copies, redemption of debentures, and then children write the heading SEBI guidelines. और SEBI guidelines में आप so called that is तक पहले कॉपी कर लीजिए very quickly children. So children put it required to create at least 10% of the face value of debentures within bracket side if it is repaid out of capital, else 100% if it is repaid out of profits. So put this children. So अगर क्वेश्चन आपको लिख के दे दे कि डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड, बट इट इज नॉट मेंशन कि आउट ऑफ प्रॉफिट है कि आउट ऑफ कैपिटल है, तो आप 10% लिखेंगे, और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स लिख के आ गए क्वेश्चन में तो 100%. अब मैं यहाँ पे आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ चिल्ड्रन. सेबी बोलता है मिनिमम इतना पैसा आप प्रॉफिट में से ट्रांसफर करिए. अगर 50 करोड़ के डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं और 5 साल के बाद आपको 50 करोड़ वापस करना है, तो व्हाट इज 10% ऑफ 50 करोड़ चिल्ड्रन? 5 करोड़. 50 करोड़ का 10% कितना होता है? 5 करोड़. कम से कम 5 करोड़ रुपए अपने प्रॉफिट में से निकालिए और उसको एक स्पेशल अकाउंट में जाके जमा कर दीजिए, और उससे आप पैसा तब तक नहीं निकाल सकते जब तक डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट ना हो जाए.
मिनिमम है ना, मैक्सिमम पैसा बचाने के लिए धरती पे कोई लिमिट किसी गवर्नमेंट की नहीं है। तो आप हर केस में टेकन फॉर ग्रांटेड अगर 100 भी मान लेंगे, टीचर इज नॉट गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स। ओके, तो प्रॉफिट वाले में तो सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, पहले ये लिमिट 15%, 50%, 25% की भी थी, बट नाउ दे आर वेरी स्ट्रिक्ट जब से कंपनी इतनी धांधलेबाजी करने लग गई हैं। तो 50 करोड़ रुपए आपको डिबेंचर होल्डर्स को वापस करना है 10 साल के बाद। सेबी कहेगा विद इन 10 ईयर्स आप 50 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लीजिए कम से कम, क्योंकि कल को अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपके पास पैसे देने में प्रॉब्लम ना हो। यू माइट हैव अ क्वेश्चन, सर अगर हम इस पैसे को ना इकट्ठा करें तो? नो प्रॉब्लम, जब ऑडिटर आपकी बुक्स ऑडिट करेगा वहां पे रिजर्व में जब पैसा नहीं होगा वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा और एक ईमेल कर देगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, अब जाइए आप ये रिश्ता क्या कहलाता है समझते रहिए। समझ में आया कि नहीं? तो फ्रॉड करना बहुत मुश्किल है एज ऑफ टुडे, बट देयर आर सर्टेन कंपनीज चिल्ड्रन जिन्हें DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, थ्योरी पर्पसेस के लिए आपको लर्न करना है। अगर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा नहीं रखना तो मतलब कोई अकाउंटिंग भी नहीं करनी, कोई एंट्री वगैरह भी पास नहीं करनी, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाएगा भाई जब आपको कुछ करना ही ना हो? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो क्वेश्चन में तो एंट्री आपसे करवाई ही जाएगी। तो दिस पार्ट ऑफ द फीचर फिल्म इज स्पॉन्सर्ड ओनली फॉर दोज जो पढ़ना नहीं चाहते हैं या जिनको सिर्फ थ्योरी करनी है एग्जाम में। प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में तो आपको एंट्री करनी है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व। बट देयर आर सम कंपनीज जिन्हें DRR बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी कंपनीज है सर? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट होती हैं, क्योंकि RBI ऑलरेडी उनसे SLR LRR इतना लेकर रखता है कि अगर वो भाग भी जाए तो उस पैसे में से इजीली पेमेंट हो जाए। सेम इज द केस विथ इंस्टीट्यूशंस लाइक मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, दे आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी RBI के सो कॉल्ड अंडर में आते हैं। इन्हें भी DRR बनाने की या रिजर्व में अलग से प्रॉफिट रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंकिंग कंपनीज चाहे पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक, सेम वो RBI वाला पॉइंट है। हाउसिंग कंपनीज जैसे सर DHFL का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, गोदरेज होम्स का नाम तो सुना ही होगा, महिंद्रा स्पेसेस का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लिया आपने, टाटा होम्स का नाम सुना होगा, ये रियल एस्टेट में डील करते हैं। इन्हें भी रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर से, शेयर होल्डर से जो ये पैसे लेते हैं उसे लैंड खरीदते हैं, जाके उस पर घर बनवाते हैं, फिर घर कस्टमर को बेचते हैं प्रॉफिट पे। कस्टमर से पैसे जब आते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर्स को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट, और ड्यू डेट पे उनका प्रिंसिपल पैसा वापस हो जाता है। अगर ये डिफॉल्ट कर भी गए, नो इश्यूज एट ऑल चिल्ड्रन, नो इश्यूज एट ऑल, हम इनका लैंड सेल करके पैसा डिबेंचर होल्डर्स को वापस दिलवा देंगे। तो इनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी रहती है, इसलिए इनको एग्जेम्प्ट किया गया है। और इन कंपनीज ने स्पेशल परमिशन भी मांगी हुई RBI से कि अगर आप हमसे हमारे प्रॉफिट्स को रिजर्व में रखने को बोलोगे तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्योंकि हमारे बिजनेस में तो एट ऑल टाइम पूरे पैसे की जरूरत है। इनका बेसिकली चिल्ड्रन जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वही इनकी वर्किंग कैपिटल होता है। अगर 100 करोड़ रुपए डिबेंचर होल्डर से लिया तो ये कोई फैक्ट्री में थोड़ा लगाएंगे उस पैसे को, वो 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए का लैंड खरीद लेंगे, 30-35 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन पे खर्च करेंगे, फिर 95 करोड़ खर्च करने के बाद 130 करोड़ में प्रॉपर्टी बेच देंगे, और फिर जो प्रॉफिट आएगा डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड प्रिंसिपल मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स दिया जाएगा। तो इन रियल एस्टेट कंपनीज का कैपिटल एम्प्लॉयड ही वर्किंग कैपिटल एज सच। इनको बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए होता है अपने डे टू डे वर्किंग के लिए। कोई चूरन का डिब्बा तो बना नहीं रहे हैं, बर्तन शर्ट पैंट तो बना नहीं रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए फैक्ट्री में लगा तो इनका एक यूनिट 2000 रुपए में बिकता है। 100 करोड़ फैक्ट्री में लगा तो एक यूनिट 2 करोड़ में बिक भी जाती है इनकी। समझ में आ गई बात की नहीं? तो रियल एस्टेट कंपनीज में बहुत मुश्किल होता है वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में डिफरेंशिएट करना। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि इनके फिक्स्ड एसेट्स बहुत कम होंगे, करंट एसेट में ही सारा लैंड एंड बिल्डिंग होगा इनका, क्योंकि वही इनको खरीदना बेचना है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए, तो रियल एस्टेट कंपनी का जो ऑफिस होता है वो किचन के बराबर होता है एंड मेनी अ टाइम्स वॉशरूम या स्टोर के बराबर होता है, बट इनकी जो करंट एसेट्स होती हैं वो एकर्स ऑफ लैंड होता है। देयर आफ्टर चिल्ड्रन एक रूल और है कि कंपनी भाग ना जाए तो इन्हें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में पैसा जमा करना पड़ेगा जो प्रॉफिट में से अलग से निकाल के रखा है। गॉट इट क्लियर? उसकी भी लिमिट है 15% ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। ध्यान से सुनिएगा, मेरी कंपनी है और 100 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स मैंने इशू किए,
एंड इशू किए हैं 1 अप्रैल 2012 और रिडीम करना है 31 मार्च 2022. So children, till 30th April 21, 30th April 21, 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है और पूरा का पूरा 100 करोड़ का रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी है. अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स शब्द क्वेश्चन में लिख के आया तो एल्स ओनली 10% चल जाएगा. बट टू बी ऑन द सेफर साइड मिनिमम बोला है सेबी ने. क्या बोला है? मिनिमम. मैक्सिमम आप कितना भी बचा लो तो सबके लिए टेक इट फॉर ग्रांटेड 100%. क्या फर्क पड़ता है? लॉजिक समझ में आ गया? एटलीस्ट आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं गलत होंगे. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? और 15% पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें से. तो कहने का मतलब आपका प्रॉफिट लेटस से 300 करोड़ रुपीस का हुआ इन द ईयर 2018. 2000. तो सर इसमें से हम कितना निकाल लें? कितना भी चाहे निकाल लीजिए. 31 मार्च 22 से पहले आपके डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 10 या 100% पैसा होना कंपलसरी है. आप 1 साल में बचाएं, 2 साल में बचाएं, 10 साल में बचाएं, चॉइस इज योर्स. यू हैव टू डू MBA, यू हैव टू डू CA, यू हैव टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज XYZ. आपने पापा से कहा कि मेरे को कॉलेज तक जाने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर तक जाने के लिए एक 2 व्हीलर चाहिए एंड 2 व्हीलर इज ऑफ 2 लाख रुपीज. अब ये आपको मान लीजिए चाहिए बाय 31 मार्च 2025. 31 मार्च 2025 जब आपकी उम्र लेटेस्ट से 22 साल हो जाएगी. समझ में आ रही बात? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो अब पापा आपके डेट ऑफ बर्थ पे 2 लाख की FD करा दें, 1.5 लाख की FD करा दें, आपके पैदा होने के 4 साल बाद FD कराएं, इससे आपसे मतलब नहीं है. यू विल नीड टू गेट दैट बाय विच डेट? 31 मार्च 25. लॉजिक समझ में आया कि नहीं? सो चैप्टर इज टू स्टार्ट. आई हैव टू गिव यू द बुकलेट. कैसे आती है, कहां से आती है, शुड यू बी वरीड फॉर दैट? नो, ये मेरा आउटलुक है. फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? दैट द स्टडी मटेरियल हैज टू बी मेड अवेलेबल. तो कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलता है हमसे इससे मतलब नहीं है कि आप क्या करेंगे. हमने कानून बना दिया 31 मार्च 22 को रीपे करना स्टार्ट करना है पैसा. 15 दिन के अंदर पूरा पैसा रीपे हो जाना चाहिए. प्रायर टू दिस डेट आप DRR में सफिशिएंट अमाउंट रख लीजिए. एंड जब आपको रिडीम करना है उसके पहले वाला जो 30 अप्रैल आएगा, तब तक आपको उस 100 करोड़ में से 15 करोड़ या 10 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. It could be fixed deposits, it could be some special bonds issued by RBI, anything. वो लिस्ट बहुत बड़ी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है. आपको बस जर्नल एंट्री पास करनी है पैसा इन्वेस्ट करने की. दैट इज इन्वेस्टमेंट टू बैंक. ये कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं? इससे स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 से लेना देना बिल्कुल नहीं है. फंडामेंटल्स आर गेटिंग क्लियर चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, सो आई विल गिव यू दिस PDF. तो आप इसको कॉपी जरूर कर लीजिएगा, बट आप इस रूल को जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये 2 बातें ही आपको एंट्रीज में लर्न करनी है. और पहले 2 जो मेथड्स हैं चिल्ड्रन हमारे, दैट इज पेमेंट इन लमसम एंड कुछ होता है इंस्टॉलमेंट्स वाला. उसमें आपको एंट्री का सीक्वेंस ये करना है. सबसे पहले आप इशू की एंट्री करेंगे, उसके बाद DRR क्रिएट करेंगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र करेंगे, और फिर आप रिडेम्पशन के टाइम पे एंट्री पास करेंगे पेमेंट की और उसके पहले ड्यू की. और इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है इसको आप बेचेंगे तभी तो आप पैसा दे पाएंगे. दिस इज द बेसिक सीक्वेंस. और जो पढ़ाई है सिर्फ पहले मेथड में है, उसी के एंट्रीज को टुकड़ों टुकड़ों में आपको सेकेंड मेथड में करना है. फर्स्ट मेथड बोलता है 10 साल बाद पूरा पैसा देंगे, सेकेंड बोलता है हर तीसरे साल पैसा देंगे. तो जो एंट्री 10 साल बाद करनी है वही हर 3-3 साल में करनी है. तो आपकी डाइट है 5 पराठा खाने की, बट टाइम कम था तो 2 पराठा आपने क्लास के पहले खा लिया है, 2 इस क्लास के बाद खाएंगे और 1 उसके बाद. पराठा वही है, आपका मुंह वही है, हाथ वही है जिससे तोड़ तोड़ के खाएंगे. कैंची तो खरीदी नहीं होगी पराठा काटने के लिए. समझ में आई बात की नहीं? या मिक्सर ग्राइंडर में चला लें सर थोड़ा सा उसको. तो पहले 2 मेथड्स का अकाउंटिंग सीक्वेंस यही होता है चिल्ड्रन. अंडरस्टूड दैट? अंडरस्टूड दैट? ओपन मार्केट में ना आपको DRR की जरूरत है. क्यों सर? कभी भी पैसा दे सकते हैं ना, हम तो पैसा देने तैयार हैं. तो अब हमें रिजर्व क्रिएट करने की क्या जरूरत? आपने तो हेलमेट पहनी हुई है, क्या पुलिस वाला आपको रोकने की कोशिश करेगा? नो.
तो जब आप तुरंत ओपन मार्केट में पैसा देने को तैयार हैं डिबेंचर होल्डर को, कोई भी रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब रिजर्व नहीं क्रिएट हुआ तो इन्वेस्टमेंट किस बात का, तो वहां पे ये दोनों एंट्रीज ऑटोमेटिकली कट जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग पक्का? तो जो पढ़ाई है चिल्ड्रन सिर्फ फर्स्ट मेथड में है, बस वो आपने ध्यान से पढ़ लिया, बाकी सब तो मेरी गो राउंड है। ओके, सो वेरी क्विकली चिल्ड्रन, प्लीज कॉपी दिस रूल। डिबेंचर इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बिफोर April 30th, 15% of the debentures to be redeemed. Be quick to this. Be quick to this. और ये जो institutions हैं, इन जगहों पे पैसा जमा होता है चिल्ड्रन। अब आपको अगेन थ्योरी के लिए 2-4 लाइन रट लीजिएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए ओनली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस चिल्ड्रन, बस इतना शेडेड पोर्शन। बी क्विक टू दिस। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। The first accounting treatment children, out of profits as well as children, this whole would remain as out of capital. So सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिख के मिला कि आपने आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम किया या आउट ऑफ कैपिटल, तो आप अज्यूम कर लेंगे आउट ऑफ कैपिटल, बट आउट ऑफ कैपिटल वो वाला नहीं कि जिसमें हम पुराने शेयर होल्डर्स का पैसा देंगे, हम इनको नए शेयर होल्डर्स का पैसा बेसिकली देते हैं। ओके, या हम अपने पास से पैसा देंगे, सिर्फ क्वेश्चन में आउट ऑफ प्रॉफिट टेक्स्ट मिसिंग रहेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, वी विल पास द एंट्री फॉर इशू। जो 9 केसेस आपने पढ़े थे, फॉर पहली एंट्री रिसिप्ट की होती थी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फॉलोड बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस है तो डेबिट कर दीजिए, टू डिबेंचर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर प्रीमियम पे रिडीम करना है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। देन चिल्ड्रन सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन में आपको लेटर से लिख के मिल गया द टेक्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो आप 100% ऑफ द फेस वैल्यू रिडीम करेंगे, सॉरी डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। और अगर बच्चों आपको आउट ऑफ प्रॉफिट टेक्स्ट लिख के नहीं मिला, आई रिपीट आउट ऑफ प्रॉफिट टेक्स्ट लिख के नहीं मिला, तो आप इसे 10% कर देंगे। बट अगर उस केस में भी आप 100 करते हैं तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज सेबी बोलता है मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम पैसा बचाने पे कोई कानून नहीं है। ये सबको समझ में आ गया? देयर आफ्टर वील डू द एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट्स, खरीदने की एंट्री इज डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ नया नहीं है, वही 11th क्लास का है, वहां पे इन्वेस्टमेंट टू बैंक होता था। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ रीपेइंग मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स, दैट्स व्हाई वी नेम देम एज व्हाट चिल्ड्रन, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद चिल्ड्रन हमने अगर 10 साल बाद डिबेंचर्स रिडीम करने हैं तो 10 साल तक हमें डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? इंटरेस्ट देंगे तो उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी कटेगा, तो वो जो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है वो अप्लाई करेंगे। बट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं होता, 4 to 6 मार्क्स में इसकी टेस्टिंग होती है इन आईसी ऑल्सो। सीबीएसई के तो सिलेबस से इसको उड़ा दिया गया है बेसिकली, तो ये सीयूटी में काम आएगा। तो चिल्ड्रन आपको जब इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, तो आपके किए गए इन्वेस्टमेंट्स भी तो आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे, उसकी भी तो आप एंट्री करेंगे। डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा आएगा इंटरेस्ट का, जहां इन्वेस्ट किया है वो आपका टैक्स काटेंगे, वो लोग टैक्स काटेंगे, उनके लिए लायबिलिटी है टू पे टू द गवर्नमेंट। आपका टैक्स कट चुका, इट्स एन एक्सपेंस फॉर यू। तो अगर मेरा बैंक मेरे को मेरी एफडी पे कहता है 10,000 रुपए इंटरेस्ट बना सर आपका, मैंने कहा 9,000 क्यों दिया? चोर टाइप के हैं जो 1,000 काट लिए। कह रहे नहीं सर, 9,000 हम आपको दे रहे हैं, 1,000 हमने टैक्स काट लिया है, टोटल कमाई आपकी 10,000 की है। तो जब हम किसी का टैक्स काटते हैं और हमें उसको गवर्नमेंट को देना होता है, इट्स अ लायबिलिटी, और हमारे कई टैक्स के पैसे अगर कट जाते हैं तो इट्स एन एक्सपेंस। और उसके बाद इस इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर करेंगे पीएल में, जैसे आपने क्लोजिंग एंट्रीज 11th क्लास में पढ़ी थी। एंट्री तो होनी चाहिए सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, भाई रईस लोग हैं, मर्सिडीज से चल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल। वैसे ये डी पार्ट के लिए क्वेश्चन आपको एक लाइन लिख के देता है 90% केसेस में, इग्नोर इंटरेस्ट, ना लेने वाला इंटरेस्ट ना देने वाला। बट बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन में कभी आए तो आप ये ना बोलेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं हमको, ये खोपड़े में बात गई। तो जब हम डिबेंचर बेचते हैं हमें इंटरेस्ट देना होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट्स कहीं करते हैं तो डेफिनेटली ट्रू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट। देयर आफ्टर चिल्ड्रन अब 10 साल खत्म हो गए,
और आपको रिडेम्पशन करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए थे, यू आर गोइंग टू सेल देम, अरेंज नेसेसरी मनी एंड देन इनिशिएट फॉर पेमेंट। माइट बी पॉसिबल आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए वो पार पे बिक गए, तो एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट देके गए तो पीएल या डीआरआर में उस प्रॉफिट को लिख दीजिए, लॉस हो गया तो डेबिट कर दीजिए। एकदम डेप्रिसिएशन चैप्टर के एसेट सोल्ड की तरह नजर आ रहा होगा, बट अगेन आपके सिलेबस में ये एंट्री ही करनी है। एट प्रॉफिट एट लॉस आपको क्वेश्चन में कभी भी नहीं मिलेगा। पीपल माइट से सर आप पढ़ाते क्यों फिर ये सब? सीयूईटी में चिल्ड्रन जब पेपर बनता है तो वो इंडिया के सारे बोर्ड्स को कंसिडर करते हुए मिलता है। यूपी बोर्ड के सिलेबस में चीजें आज भी लिखी गई हैं, तो वहां पे बच्चों को याद भी कराया जाता है। तो वो सीयूटी में आपसे नहीं पूछेंगे कि आप किस बोर्ड से पढ़ के आए हैं, सिलेबस क्यों नहीं पढ़ा, और आप वहां पे करते रहिए बकवास, में केस कर दूंगा, ये कर दूं, करते रहिए जो करना है। बिकॉज सीयूटी बोलता है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टेस्ट होगा, कितना पोर्शन टेस्ट होगा ये नहीं बताया गया, तो ये चीजें वहां पे काम आएंगी आपको। ओके, समझ में आ गया? सो देयर आफ्टर अब आप रिडेम्पशन का पेमेंट करेंगे, मतलब रिडेम्पशन करेंगे जो 9 एंट्रीज आपने पढ़ी थी। वही मैंने बॉक्स बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट गोइंग बैक चिल्ड्रन, ये बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, मिला चिल्ड्रन? तो ये सारी एंट्रीज बीच में चिल्ड्रन डीआरआर क्रिएट करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, इंटरेस्ट देने की एंट्री, इंटरेस्ट लेने की एंट्री, फिर इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की एंट्री, फिर आती है रिडेम्पशन की एंट्री। सो चैप्टर इज नॉट अ ग्रेट रॉकेट साइंस, बट बीच में एन नंबर ऑफ एंट्रीज आर एडिशनल चिल्ड्रन। और फिर जो आपने रिजर्व कभी बनाया था, एंट्री वॉज PL2 DRR किया था चिल्ड्रन आपने, इसे खत्म भी करना पड़ेगा, जो ताला खोला है बंद भी करना पड़ेगा। एंट्री होगी DRR टू GR। यू माइट से सर इसको PL में क्यों नहीं क्रिएट कर रहे? नहीं सर, आई एम नॉट सेइंग, यू आर ओनली सेइंग दिस। एग्जाम में वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये PL में क्यों नहीं क्लोज हो रहा? PL में क्रेडिट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कोई कमाया थोड़ा जो टैक्स दे जाके, दैट्स वाई PL में इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे, सो दैट हमारी टैक्सेबल इनकम ना गड़बड़ हो जाए। दैट्स वाई वी आर ट्रांसफरिंग इट टू जनरल रिजर्व। सुनाई पड़ी बात? पक्का? चलिए, सो वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली लेट्स हैव दीज जर्नल एंट्रीज इन आवर नोट्स। पुट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ABC को क्विकली कॉपी कर लीजिए फास्ट। Yes, sir. देन चिल्ड्रन ABC कॉपी करने के बाद कॉपी D followed by E। चलिए, Yes, sir. and then we proceed with the entries for profit and loss, and finally so called the entries for redemption children। चलिए, नेक्स्ट क्लास हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्टी सिर्फ होती है कि बच्चे को सीक्वेंस याद रहे एज सच। ओके, क्विकली कॉपी दीजिए, we'll do the questions in the next class, ठीक है?